Hello students, how are you all? I'm so happy that you all are liking the videos and 2-3 students have commented as well, and thank you so much for that. Manat has asked for a video upon English pronunciation. Manat, I'll definitely prepare the same and will share it with you in next month, because this month I'm already prepared with certain presentations on different topics for you, right? So next month for sure. Okay, today's topic is business management. See, last video was also upon the career option. So I'll try, to give at least 2-3 career options every month for you, along with different emotional concerns video, so that you can work upon your this research also, that what you would like to be in your future. So let us have a look upon the business management. See, now the word when business comes, it doesn't mean that it is only for the students who want to do, pursue their career in business, like, right? So, yeah, many of you must not have decided yet that what to do in future. So you may definitely watch this video, because you will get an idea that whether business management is suitable for you or not. The students who have decided to do business management or the management or the business or a job in management, then you should also definitely watch it. And the students who have already decided neither to go for business nor to go for management, they should also watch it. You know why? Because management is the thing which we require at each and every place. Let me tell you that, look at your mom. What does she do? सुबह उठ के किस टाइम पे खाना बनाना है, कैसे फैमिली के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, कौन से टाइम पे क्या काम करना है, कहाँ प्रायोरिटी सेट करनी, शी नोज एवरीथिंग. शी मैनेजेस द हाउस वेरी वेल, very nicely. If she is a working woman, then she manages her work as well, along with to work upon their kids, right? Even look at your father. If he is doing a business or a job, so he manages both the things, like financial also, expenses also, looking at the taking care of family members and his professional. So even your teacher, being a student also, you manage so many things, like the students who are head boy or the head girls, और द स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी जाते हो आप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करते हो और अपना स्टडी भी मैनेज करते हो. तो मैनेजमेंट हर जगह पे काम आता है. लेकिन अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्पेशली you want to be a manager or you want to do your own business, then you should properly study business management. Let us go ahead and have a look that what are the things you need to know for the same. Okay, so many clubs. Let us delve into a business management. Management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall. ladder कौन होता है? किंग. जो लीडर होता है, ठीक है, वो एक एक लेडर की तरह, मतलब वो आपको एक सही काम देता है, ठीक है. और जो मैनेजर होता है, वो उस लेडर को प्रॉपर जगह पे रख के जो भी काम असाइन किया गया है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके. सो मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड एवरीवेयर इट रिक्वायर्स. उसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? इन जनरल बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब BBA स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, वुड बी हेल्पफुल इन गेटिंग अ पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स. लेकिन इसके अलावा अदर कोर्सेज भी हैं. MBA मेनली यू ऑल आर अवेयर ऑफ, ठीक है. तो अदर कोर्सेज के बारे में भी हम जानेंगे. द पॉसिबल करियर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स. आप BBA, MBA, MCOM, BCOM जो भी कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो भी आप करते हो, ठीक है, उसके बाद आप कौन से करियर में डेवलप कर सकते हो? तो सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, financial analyst, human resource manager. See, students, like these are the main
यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस डेजिग्नेशंस। बट इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, आगे हम देखेंगे उनके बारे में। बट दीज आर द मेन फील्ड्स वेर यू कैन जंप इन, ठीक है। सेल्स मैनेजर आपने सुना होगा, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट क्या करता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, फाइनेंस मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज मतलब जो एचआर मैनेजर होते हैं वो मेनली पर्सनल फील्ड में एक्सपर्टाइज करते हैं। सम गुड कॉलेजेस फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट लर्न करना चाहते हो तो सेंट जेवियर्स कॉलेज है कोलकाता में, शहीद सुखदेव कॉलेज है बिजनेस स्टडीज का, नरसी मोंजी बहुत ही फेमस है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, अगेन सेंट जेवियर्स मुंबई में भी है, सिम्बियोसिस सेंटर है, IIM इंदौर, मणिपाल यूनिवर्सिटी। दीज आर फ्यू फेमस वन एंड गुड वन। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं करना चाहते हो, डिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हो, ऑनलाइन मोड पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। स्किल्स, हर बार मैं कहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आपकी स्किल्स आपको सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, बिकॉज आप एक लीडर के तौर पर काम करते हो, आपकी एक टीम होती है जिसको आपको मोटिवेट करना होता है, तो रिलेशन बिल्डिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी नाइस एंड यू शुड बी मोटिवेटेड। अगर आप खुद डल हो तो आप दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे, सो दैट मस्ट बी दिस, दैट्स अ मस्ट स्किल, राइट। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेलीगेशन, फॉरवर्ड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कमर्शियल अवेयरनेस एंड मेंटोरिंग। आपको ये सारी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में काम करना चाहते हो। हाउ डू आई डेवलप माई मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे डेवलप करेंगे? तो ज्वाइनिंग स्टूडेंट सोसाइटीज़, अगर आप जानते हो किसी सोसाइटी, स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में या ग्रुप के बारे में जो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती हैं, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन, ठीक है। आप फ्रेंड्स मिलके बना सकते हो जो लोग चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरिंग, मतलब आप जब 12th कॉमर्स कर रहे हो या तो फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको लास्ट सेम में आएगा ये प्रोजेक्ट बनाना, उस टाइम पे भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। देयर आर स्टूडेंट्स जो अपना बैचलर खत्म करके 6 महीने या साल भर का गैप लेते हैं एंड देन दे गो फॉर द इंटर्नशिप एंड देन दे डिसाइड कि कहाँ मुझे मास्टर से PG कौन से फील्ड में करना है, पर्सनल में जाना है, फाइनेंस में जाना है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट स्किल तो हर एक फील्ड में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर काम कर रहे हो वहाँ पे भी चाहिए, आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो वहाँ पे भी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन वुड डिफर, यू विल हैव टू डिसाइड एंड दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो उसके लिए इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा। पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हो, फॉरेन में जनरली बच्चे करते ही हैं, अपने स्टडीज के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि उन समझ सके अच्छे से। स्टडिंग फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आप जा सकते हो। एवरेज बिजनेस मैनेजर की सैलरी क्या होती है? इट डेफिनेटली मैटर्स कि आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, आपको क्या पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो देयर इज नो बार, एज आई सेड, अगर आप में स्किल है तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि हम मतलब स्काई इज द लिमिट देन, राइट। बिजनेस करते हो तो यू नो कि बिजनेस में रतन टाटा कितना सक्सेसफुल है या अंबानी जी कितने सक्सेसफुल है, दैट इज ऑल बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज अ टीम, दे हैव हायर्ड बेस्ट पीपल, ठीक है। तो उनके लिए इनकम कोई उनको नहीं पूछता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो that depends upon totally upon your skill. The average salary for a business manager in India is INR 8,53,284 rupees. Take a look at some of the salaries for popular career in international business. अगर आप IB में हो, इंटरनेशनल बिजनेस के डिपार्टमेंट में हो, या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हो, या आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डॉलर में 127,990 सैलरी हो सकती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की $85,000 एंड 660 रुपीज डॉलर सैलरी हो सकती है। सो आई हैव मेंशन्ड फ्यू फिगर्स हियर सो दैट यू कैन दीज आर द एवरेज मीडियन एनुअल सैलरी की फिगर्स आई हैव केप्ट हियर, राइट।
What do business managers do? Exactly, आपको समझना पड़ेगा. Manage business and financial affairs related to the administration of business unit or department. मतलब सी इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में और क्या डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो. अगर आपके ऊपर मतलब फाइनेंशियल अफेयर्स तो आपको मैनेज करना आना चाहिए अगर आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर रहे हो. ठीक है. ड्राइव business functions and ensures employees efforts support organizational goal and objective. आपकी टीम को बूस्ट करके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कि इतना टारगेट अचीव करना है, whether it is in marketing, whether it is in sales, whether it is in financial, whether it is in personnel, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. प्रोवाइड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, प्रैक्टिस ग्रोथ, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये सारा काम मैनेजर को करना पड़ता है, या स्पेसिफिक किस फील्ड में आप हो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. एज आई सेड अर्लियर, मैंने आपको कुछ 4 या 5 मेन जो जॉब हम जानते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अलावा भी जॉब ऑप्शंस हैं, जैसे कि जॉब्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिग्री, जैसे कि एक्चुरियल एनालिस्ट, आर्बिट्रेटर, ये इसके साथ लिंक भी हैं, अगर आप चाहो गूगल करोगे आपको मिल जाएगा. बिजनेस एडवाइजर, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकर, डेटा एनालिस्ट. You can just pause the video and you can read all the job professions which you can go directly into after completion of your management course. अच्छा, अगर आपने मैनेजमेंट किया है लेकिन आप अदर फील्ड में काम करना चाहते हो, जैसे कि मुझे आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट है और मुझे मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है, मेरे में दोनों स्किल्स हैं. आई हैव स्टडीड मैनेजमेंट लेकिन मुझे आर्किटेक्चर में जाना है. जैसे आपने 3 इडियट्स देखा होगा, वो इंजीनियरिंग पढ़ता है, उसके बाद एमबीए करता है और उसके बाद बैंक में जॉब करता है. तो ऐसा नहीं करो. यू मे आइडेंटिफाई एंड यू कैन मर्ज योर स्किल्स एंड योर स्टडी बोथ. ठीक है, अगर आपको बाद में प्रोफेशन चेंज करना है तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ठीक है. देखो, एवरीवेयर मैनेजमेंट रिक्वायर्स एज आई सेड. तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड, या तो आपकी फैमिली बिजनेस है और आप चाहते हो कि मैं मैनेजमेंट उसमें करूं, तो आप जा सकते हो डेफिनेटली. कॉस्ट लॉयर है, एनवायरमेंटल इंजीनियर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. There are endless professions where you can use your study as मैनेजमेंट स्किल्स, राइट. सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सिस्टम एनालिस्ट है, अर्बन डिजाइनर है. इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, दैट हाउ डू यू मॉडिफाई एंड हाउ डू यू प्ले विद योर स्किल्स एंड योर डिग्री एंड योर करियर, राइट. The best leader, the best teacher ever, you all must have heard about Chanakya. He has said there are 7 pillars of a business as told by Chanakya. कौन कौन से 7 पिलर्स है? द किंग, द लीडर, द मिनिस्टर, मैनेजर, कंट्री मतलब आपका जो मार्केट है आज के टाइम पे अगर बताएं, फोर्टिफाइड सिटी मतलब हेड ऑफिस, द ट्रेजरी, योर टीम एंड योर फ्रेंड्स एंड कंसल्टेंट. तो ये 7 पिलर्स हैं जो आपकी टीम को मजबूत बनाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं. वहां पे इफ यू विल सी द सेकेंड at most important pillar is the role of the manager, the minister. ठीक है, तो अगर आप मैनेजर का रोल अदा कर रहे हो, इट मीन्स यू आर द सेकेंड at most important person. The manager is the person who runs the show, the second in command of an organization. He is also the person whom you can depend upon in the absence of the leader. He is a man who is always in action. An extraordinary leader and an efficient manager together bring into existence a remarkable organization. So I wish you all the best. If you would like to, make your career remarkable and just go ahead with the dare, with the risk, and pursue management skills. All the best, students. Thank you. Bye-bye.